Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune Newspaper of 9th March 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can collect February 2020 compilation of newspaper analysis in printed magazine form from our Ganeshguri Center. And this is the address of our Ganeshguri Center. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding India's Act East policy. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So let us see what has been written in this article. This article, as I told you, will primarily focus on India's Act East policy. We will see about India's Act East policy. Then we will also see how it evolved from India's Look East policy that prevailed before Act East policy in 2014. We will also see the strategic significance of Act East policy for India and some challenges that India is facing regarding Act East policy. So एक बार जरा देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में. सो दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इट्स फॉरेन पॉलिसी दैट प्राइमरीली फोकसेस ऑन एशिया पैसिफिक रीजन. तो ये रीजन जहां मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस रिप्रेजेंट्स एशिया पैसिफिक रीजन, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का जो ट्रांजिशनल लैंड मास है, दैट इज़ नोन एज एशिया पैसिफिक रीजन, राइट फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, then entire ASEAN countries including Australia. This makes Asia Pacific region, and India's Act East policy focuses on Asia Pacific region. It focuses on different dimensions. For example, it focuses primarily on economic cooperation, but it also focuses on other areas of integration like political, strategic, cultural integration with other countries of Asia Pacific region. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को डिफाइन किया था विथ हेल्प ऑफ 4 C's. तो ये 4 C आप याद रख सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में आप यूज भी कर सकते हैं अगर कोई सवाल आ जाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे. सो यू कैन से दैट द 4 फोकस एरियाज अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी आर 4 C's, and they are culture, commerce, connectivity and capacity building of member countries in Asia Pacific region. Though the focus area of Act East policy is entire Asia Pacific region, nevertheless the special emphasis of Act East policy will be on ASEAN countries. So let us see the ASEAN countries. Asia Pacific region तो हमने देख लिया, the transitional landmass between Indian Ocean and Pacific Ocean, but there are 10 ASEAN countries. ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. So these are 10 Southeast Asian countries. Together they have created a political and economic group known as ASEAN. तो ये आसियान कंट्रीज आर द सेंट्रल फोकस एरिया ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. और आसियान के नाम इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के नाम आपको ज़रूर याद रखने चाहिए. दे आर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई and Philippines. Some of the important projects that have been taken under Act East policy are Kaladan Multimodal Transit Project, India-Myanmar Thailand Trilateral Highway Project, Re-Tidim Road Project, Border Huts, etc. Let us see now how Act East policy evolved from India's Look East policy. So you must know that before Act East policy that was brought by Narendra Modi's government in 2014, there was already India's foreign policy regarding Southeast Asian countries that was known by the name Look East policy. And this Look East policy was brought in 1991 by Prime Minister Narasimha Rao, and the objective of this Look East policy was to strengthen India's standing as a regional power and counterweight the strategic influence of People's Republic of China. तो ये आप रीजन देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी वाला रीजन खासकर, ये लैंड मास को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच के जो लैंड मास को हम कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन, जबकि उसके जो वाटर वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन. और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है.
और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर वेट करने के लिए, लिमिट करने के लिए और इंडिया को रीजनल पावर की तरह प्रोजेक्ट करने के लिए इंडिया ने 1991 में ही एक पॉलिसी लेकर के आई थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। एंड India's look east policy mainly focused on Southeast Asian nations. It did not focus on entire Asia Pacific countries. And as I told you, the objective of look east was to increase India's standing as regional power in this Indo-Pacific region. But later on in 2014, look east policy was upgraded to act east policy by Prime Minister Narendra Modi's administration. सो एक बार जरा की डिफरेंस देखते हैं जो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में है। सो जो सबसे पहला डिफरेंस है दैट इज़ रिगार्डिंग फोकस रीजन। कौन कौन से एरिया पे फोकस किया जा रहा था इन लुक ईस्ट पॉलिसी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी में द फोकस वाज ओनली ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं और लुक ईस्ट पॉलिसी में बस इन्हीं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस किया जा रहा था। जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अब फोकस एरिया इंक्रीज कर दिया गया है और पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक रीजन को अब इंक्लूड किया जा रहा है अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी दीज 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो नोन एज आसियान, बट एक्ट ईस्ट इज आसियान प्लस चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो again I'm telling you, look east policy focused only on 10 countries while act east policy involves a group of 16 countries including India. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो लुक ईस्ट पॉलिसी फोकस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, while this act east policy focuses not just on economy but also on security, connectivity and cultural dimension of integration or cooperation with all the Asia Pacific countries. अब जरा देखते हैं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉर इंडिया। सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। सो चाइना आप सबको पता है इट इज़ फॉलोइंग अ वेरी एग्रेसिव पॉलिसी इन साउथ चाइना सी। उसने कई सारे ऑयल ब्लॉक्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं, इससे कई सारे आइलैंड्स को इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं फ्रॉम अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एंड एक 9 डैश लाइन, एक तरह का वर्चुअल लाइन उसने डिमार्केट कर दिया इन ऑर्डर टू क्लेम सम ऑफ द मैरीटाइम जोन इन साउथ चाइना सी। तो चाइना जब बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहा है इन इंटायर इंडो पैसिफिक जोन स्पेशली साउथ चाइना सी, वैसे हालात में इंडिया को भी काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू काउंटर वेट, इन ऑर्डर टू बैलेंस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी रीजन स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। Second, of course, the important significance of Act East policy will be regarding development of northeastern states of India. So, northeastern states of India, they are geographically slightly disconnected from mainland India because of narrow Siliguri corridor. और इस कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कुछ हद तक लिमिट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काफ़ी प्रोग्रेसिवली या अग्रेसिवली फॉलो करें देन इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकॉज दीज 8 states of northeastern India, they are geographically contagious to Southeast Asian countries. So अगर इंडिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है then these 8 northeastern states are going to be gateway of India to Southeast Asia. So Act East policy को अगर implement करेंगे तो एक उसका बाई प्रोडक्ट नेचुरली निकल के आएगा, that will be development of northeastern states of India. In fact, Guwahati city has been declared as a nodal city for implementation of India's Act East policy. तो अगर Act East policy को हम काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेचुरली गुवाहाटी एक बड़े सिटी की तरह इमर्ज होकर के आएगा हमारे पूरे कंट्री के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी विल बी दैट many economic opportunities have opened for India due to Act East policy.
तो बहुत सारे ऐसे डील्स थे, इकोनॉमिक डील्स थे जो पहले इंडिया फॉलोअप नहीं कर पा रहा था विथ रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लेकिन अब आफ्टर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया हैज़ बीन एबल टू क्रैक सम इम्पॉर्टेंट डील्स विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लाइक इंडिया इज नाउ सेलिंग ब्रह्मोस मिसाइल टू वियतनाम. India has got 2 oil fields on Spratly and Paracel Island in South China Sea. तो ये आप देख सकते हैं ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जैसे पैरासेल या स्कैरबोरो, यहाँ आप देख सकते हैं स्पार्टली आइलैंड. तो ये सारे जो आइलैंड्स है दे आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, और ये पैरासल और स्पार्टली आइलैंड पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल ब्लॉक्स इंडिया की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड को अलॉट किया है वियतनाम गवर्नमेंट ने फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट को भी मदद मिलेगी फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस. उसके अलावा सिंगापुर इज़ हेल्पिंग इंडिया टू बिल्ड मॉडल सिटीज़ अंडर इंडियाज़ स्मार्ट सिटी मिशन, एंड दैट ऑल बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. चौथा जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी दैट इज़ सिक्योरिटी कोऑपरेशन. तो ये जो जोन है, खासकर ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ से इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड कंडक्ट होता है. आपको पता है कि जो भी दुनिया के इंपॉर्टेंट ट्रेड होते हैं, ज़्यादातर वॉल्यूम्स जो ट्रेड होता है वो शिपिंग के थ्रू होता है, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट करना हो या कोई और दूसरा फूड ग्रेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो, ज़्यादातर वो शिपिंग के थ्रू हो सकता है क्योंकि एयर कार्गो की उतनी कैपेसिटी नहीं होती. तो और इंडिया का काफ़ी सारा मर्चेंट शिप इस बे ऑफ बंगाल रीजन से होकर के गुजरता है, और इस मर्चेंट शिप का जो ट्रांजिशनल लाइन है उसको हम कहते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. जो नेविगेशन लाइन है उसको हम कहते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, और ये इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए गुजरता है. यहाँ हमने मलक्का स्ट्रेट रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ बिटवीन मलेशियन पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया. तो इंडिया का बहुत सारा इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इस मलक्का स्ट्रेट से होके गुजरता है, एंड दिस जोन, खासकर बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, दिस इज़ वल्नरेबल टू मैनी पायरेट्स हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मलेशिया एंड म्यांमार. तो इस कारण से इंडिया ने एक तरह की सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड की है जिसका नाम है मलक्कन स्ट्रेट पेट्रोल MSP, and it is a 4-nation arrangement between Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand for exchange of intelligence, coordinated air and sea patrol through Malaccan Strait. तो इन जगहों पे अब इंडिया इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मिल करके ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी थ्रेट अराइजिंग बिकॉज ऑफ पायरेट्स ऑपरेटिंग इन दिस रीजन. और इससे इंडिया के जो भी मर्चेंट शिप्स इस एरिया से गुजरते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी कम होगी, उनके लिए थ्रेट कम होगा. सो दिस इज़ वन अगेन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी बीइंग एग्रेसिवली फॉलोड इन दिस रीजन. नाउ लेट अस सी सम चैलेंजेस इन इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो इंडिया अब जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इतना एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है उसमें कुछ चैलेंजेस भी निकल के आ रहे हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज हाल फिलहाल में निकल के आया रिगार्डिंग इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज़ नोन बाय द नेम RCEP. तो कई सालों से इंडिया एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा था विद अदर एशिया पैसिफिक कंट्रीज, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. और ये नेगोशिएशन पिछले 7-8 सालों से चल रहा था, बट लास्ट ईयर इन दिसंबर 2019 इंडिया पुल्ड आउट ऑफ दिस प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमॉन्ग्स्ट एशिया पैसिफिक कंट्रीज. तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक मेजर इनिशिएटिव माना जा रहा था RCEP, क्योंकि RCEP अगर साइन हो जाता तो इंडिया का अभी तक सिर्फ आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. अगर ये RCEP साइन हो जाता तो इंडिया का पूरे एशिया पैसिफिक कंट्री के साथ एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता, लेकिन इंडिया पुल्ड आउट ऑफ RCEP. तो इस कारण से एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मेजर डिफीट माना जा रहा है. कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, वो था RCEP. अगर इंडिया ने RCEP से ही विड्रॉ कर लिया तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया. Let us first of all see about RCEP, then we will also see why India pulled out of RCEP.
RCEP, as I told you, it stands for Regional Comprehensive Economic Partnership and it's a proposed free trade agreement among 16 Asia Pacific countries. ये 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. 10 तो आसियान के कंट्रीज हैं, उसके अलावा इंडिया, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. These 16 countries together known as Asia Pacific countries, and they had proposed a free trade agreement amongst themselves known as RCEP. And it was under negotiation since 2010. But India pulled out of RCEP negotiation in the last leg in December 2019. तो देखते हैं इंडिया के कुछ concerns क्या थे, why India pulled out of RCEP. So India has already a huge trade deficit with RCEP countries and overall trade deficit जो है हमारा लगभग 107 बिलियन डॉलर का है. यानी कि हम इन सारे कंट्रीज़ को जितना माल बेचते हैं उससे 107 बिलियन डॉलर ज़्यादा का माल हम खरीदते हैं. और अगर हमने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया मतलब हमें अपने सारे ट्रेड बैरियर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को काफ़ी कम करना होगा फॉर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद दीज कंट्रीज. और वैसे हालात में हमारा ट्रेड डिफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है. दैट कुड हैव पुट इंडिया इनटू मोर वल्नरेबल पोजीशन. And this trade deficit, as I told you, will widen if India joins RCEP, since India will have to reduce import and export duty, trade and tariff barriers, and thus the trade deficit will widen and Indian market will become more and more vulnerable. India के जो producers हैं वो ज़्यादा vulnerable हो जाएंगे, खासकर चाइनीज़ एक्सपोर्टर के तुलना में, क्योंकि अगर हमने RCEP ज्वाइन कर लिया तो उसका पार्ट चाइना भी है. यानी कि अब चाइना के माल के लिए, चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम करना होगा. और वैसे हालात में चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर टेक्निकल प्रोडक्ट्स या फिर स्टील, सीमेंट या फिर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दे विल कैप्चर इंडियन मार्केट एंड इंडियन फार्मर्स एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विल बी एट लॉस. एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर टू इंडिया, खासकर मिल्क प्रोडक्ट्स केसेस में. तो वैसे हालात में अगर भारत सरकार ने RCEP ज्वाइन कर लिया तो इंडियन फार्मर्स, खासकर मिल्क प्रोड्यूसर्स को काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. Let us attempt a practice question with respect to this particular topic. Strait of Malacca separates which of the following two land masses? Malay Peninsula and Indian island of Sumatra. Second, Africa and Europe. C, India and Sri Lanka. D, North America and South America. So as we have already seen, we had seen the map of Strait of Malacca as well, and we saw that Strait of Malacca separates, it's a narrow channel of about 550 meter of stretch, and it separates Malay Peninsula with Indonesian island of Sumatra. तो ये जो island है, ये इंडोनेशिया का island है और इस island का नाम है सुमात्रा. And this Strait of Malacca separates Malaysian peninsula with Indonesian island of Sumatra. So the correct answer will be option A, Malaysian peninsula and Indonesian island of Sumatra. We can also attempt one subjective question with respect to this particular topic. Act East policy without RCEP is not more than Look East policy. Discuss. सो इसके लिए कुछ मैंने हिंट्स भी आपको दे रखा है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. सबसे पहले यू मस्ट डिफाइन व्हाट इज़ RCEP. इट्स अ प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज and it's a major initiative under Act East policy. But you have to also say कि India has pulled out of RCEP, but that does not mean that entire Act East objective is defeated. Act East is much more than just RCEP. Act East is very much proactive and its focus areas are entire Asia Pacific. It focuses not just on economy but also on culture, security, connectivity. तो सरल शब्दों में आपको बताना है कि एक RCEP से पुल आउट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट ईस्ट हमारा डिफीट हो गया और पूरा का पूरा एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी में कोई अंतर नहीं बचा. आपको बताना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी RCEP से इंडिया ने फॉर द टाइम बिंग विड्रॉ किया है, बट इंडिया में ज्वाइन RCEP लेटर ऑन इफ इंडियाज कंसर्न्स are properly addressed. At the same time, Act East is much more proactive. उसके areas of concern और areas of cooperation भी अलग अलग हैं. तो इस तरह से आपको अपने इस आंसर को फ्रेम करना है. The next article is taken from international segment. It is regarding India-Iran relations. It reads, reading the criticism from Iran. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic India and its neighborhood relations.
सो एक बार जरा समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है, देन वी विल एनालाइज इट। ऑन March 5th इन ईरान सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खोमेनी कॉन्डेम्ड इंडियाज फॉर दिल्ली राइट NRC एंड सिटीजनशिप एक्ट प्रोटेस्ट। उसके पहले भी ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तरफ से इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया था वेयर दे अक्यूज्ड इंडिया कि इंडिया अपने देश में माइनॉरिटीज़ खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ओवरऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ मुस्लिम कम्युनिटी को हरास कर रहा है। और इसी तरह का एक स्टेटमेंट 5 मार्च को उनके जो टॉप मोस्ट लीडर हैं आयतोल्ला अली खमेनी उन्होंने दिया और उन्होंने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ किया व्हेन ही सेड दैट द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर मसाकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अब इस पे आयतोल्ला खोमेनी द टॉप मोस्ट लीडर, तो उनको डायरेक्ट तो अभी इंडिया ने उनको रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन इंडिया ने इनडायरेक्टली जवाब जरूर दिया है। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक कॉन्क्लेव में हाल फिलहाल में कहा दैट नाउ वी आर गेटिंग टू नो हु आर आवर फ्रेंड्स। तो इनडायरेक्ट अभी जवाब दिया है इंडिया ने, लेकिन अभी इंडिया माइट टेक मोर बोल्ड एक्शंस अगेंस्ट ईरान because of its repeated criticism against minority rights. सो एक बार ज़रा ये भी समझते हैं कि वाई ईरान इज़ प्रोवोकिंग इंडिया। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि ईरान बार बार इंडिया के ऊपर इस तरह के एक्यूजेशन लगा रहा है और इंडिया को प्रोवोक कर रहा है, इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट माइट हैव लेड टू ईरान बिहाइंड प्रोवोकिंग इंडिया। पहला तो कारण हो सकता है इंडियाज़ वार्म वेलकम टू डोनाल्ड ट्रंप इन नमस्ते ट्रंप कॉन्क्लेव। आप सबको पता है कि ईरान और अमेरिका एक ट्रेडिशनल हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में हॉस्टिलिटी की पूरी हिस्ट्री भी हम कवर कर चुके हैं, दैट इज़ मोस्टली रूटेड इन इरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। तो उसके बाद से ईरान और अमेरिका के रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहते हैं। और जब इंडिया ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इतना वार्म वेलकम दिया, इतना बढ़िया रिसेप्शन दिया है इन नमस्ते ट्रंप कॉन्क्लेव, तो नेचुरली ईरान माइट फील अग्रीव्ड। तो ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा, इंडिया हैज़ कट डाउन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान आफ्टर यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। तो यूएस लगातार ट्रेड सैंक्शंस लगाता रहा ईरान के ऊपर। 2013 में लगाया था उसने, फिर 2016 में लगाया इसने। तो ईरान पे जब यूएस ने सैंक्शन लगाया तब इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया और नेचुरली दिस हैज़ एलियनेटेड ईरान फ्रॉम इंडिया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है वो है चाइना फैक्टर। तो अब चाइना हैज़ इमर्ज एज ईरान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि ईरान के ऊपर लगातार यूएस ट्रेड सैंक्शंस लगाता जा रहा था और इस कारण से ईरान हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स चाइना एंड नाउ चाइना हैज़ बिकम ईरान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड China is surviving. China is supporting Iran in surviving the trade sanctions put by US. तो अगर चाइना नहीं होता तो ईरान could have collapsed completely economically, लेकिन it's only the China and Russia support that is helping Iran to survive. तो naturally Iran has become very much interlinked with China. और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो ईरान बार बार इंडिया को प्रोवोक कर रहा है, एक्यूज़ कर रहा है, that must be on insistence of China. The next article is taken from Science and Technology segment. It is regarding coronavirus infection and pets. So the question is, can pets or stray animals spread coronavirus infection? This topic is important from our syllabus, paper 4 Science and Technology point of view. I expect कि ये सवाल, इस तरह का सवाल हमारे आने वाले UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक बार ज़रा देखते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। अब दुनिया भर में एक तरह का एप्रीहेंशन डेवलप हो रहा है, एक फियर डेवलप हो रहा है कि ये जो कोरोना वायरस थ्रेट है, ये जो पैंडेमिक है कोरोना वायरस का, दैट परहैप्स स्प्रेड थ्रू स्ट्रे डॉग्स एंड पेट्स एज वेल। एक तरह का फियर है और इस कारण से बहुत सारे लोग अब देखे जा रहे हैं जो अपने पेट्स को ला करके अबैंडन कर रहे हैं, सड़कों पे छोड़ के चले जा रहे हैं। और ऐसे हालात में फिर WHO ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है वेयर WHO हैज़ सेड क्लियरली, इट हैज़ सेड दैट द करेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जिसका टेक्निकल नाम है COVID-19, एंड दिस करेंट स्प्रेड ऑफ दिस COVID-19 इज ड्यू टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। देयर इज़ नो एविडेंस दैट any pet or any companion animal can spread this disease and therefore there is no justification in taking measures against pet that may compromise their welfare. So दूसरे शब्दों में WHO ने रिक्वेस्ट किया है लोगों को कि वो अपने पेट्स को इस तरह से अबैंडन ना करें, क्योंकि ये जो
अभी पैंडेमिक फैल रहा है कोरोना वायरस का, दैट इज़ फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इट इज़ नॉट गेटिंग स्प्रेडेड थ्रू पेट्स. The next article is taken from economy segment. It is regarding oil war, and this reads, oil war triggered by Saudi price cut to benefit India immensely. So एक बार, this topic is important from our syllabus paper 3, again international relations point of view. एक बार जरा बैकग्राउंड समझते हैं, देन वील सी कि ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है. इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल हमने डेट बिफोर येस्टरडे भी कवर किया था, वेयर वी सॉ दैट ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैव डिक्लाइंड. और जब ऑयल प्राइसेस लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि डिमांड उतनी नहीं आ रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन कर रही है, तो ऑयल का डिमांड भी कम हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी डिक्लाइन कर रहे हैं. और वैसे हालात में जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक एज आई टोल्ड यू आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब उन लोगों ने मिल करके आपस में फैसला लिया कि लेट अस कट डाउन द ऑयल प्रोडक्शन, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड कम है और अगर हम उसी रेट से ऑयल प्रोड्यूस करते रहे तो मार्केट में ऑयल की प्राइसेस और गिरती जाएंगी. सो दिस ओपेक कंट्रीज हैड डिसाइडेड टू कट डाउन ऑयल प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट. ओपेक कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, द 14 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज ओपेक कंट्रीज. And these are the 14 major oil producer countries of the world. Together they have made an organization known as OPEC. And their main objective is to coordinate with each other to regulate the oil supply in the world in order to stabilize oil prices. ये तो हम ऑलरेडी हमारे 6 मार्च के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ओपेक कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके थे. आज के न्यूज़ आर्टिकल में वी विल डिस्कस अबाउट ओपेक प्लस. सो apart from these 14 oil producer countries, Russia is also a major oil producer, but it is not part of OPEC. And Russia along with OPEC countries are known as OPEC प्लस. तो कभी कभार इनफॉर्मली एक टर्म यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसका नाम है OPEC प्लस. OPEC प्लस सिंपली मीन्स दीज 14 OPEC कंट्रीज प्लस रसिया. अब देखते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है. So the news article says that the OPEC countries wanted to cut down oil production in order to stabilize international oil prices. और इस कारण से उन्होंने रसिया के साथ भी एक नेगोशिएशन करने की कोशिश की, जहां उन्होंने रसिया को भी रिक्वेस्ट किया कि रसिया शुड आल्सो कट डाउन ऑयल सप्लाई. लेकिन रसिया रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ दिस ओपेक कंट्रीज. और इसके जवाब में फिर सऊदी अरबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, it said that it will also increase its oil production rather than decreasing, और वो ऑयल प्राइसेस भी डिक्रीज करेगा. सो इस कारण से अब एक तरह का ऑयल वॉर स्टार्ट होने की संभावना है बिटवीन रसिया एंड सऊदी अरबिया. दीज आर 2 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और ओपेक प्लस में जैसा मैंने आपको बताया, रसिया माना नहीं, रसिया डिड नॉट अग्री ऑन कटिंग डाउन इट्स ऑयल सप्लाई. और उसके जवाब में सऊदी अरबिया कह रहा है कि इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑयल इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट फ्रॉम रसिया, एंड दिस विल लीड टू अ काइंड ऑफ ऑयल वॉर अक्रॉस द वर्ल्ड. और इससे उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फर्दर ड्रॉप डाउन कर जाएंगे और गिरेंगे, और इससे इंडिया जैसी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया डिपेंड्स ऑन ऑयल इंपोर्ट. फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ इंडियाज ऑयल नीड इज मेट थ्रू इंपोर्ट. और इसी कारण से ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक स्नैपशॉट लिया है हमने, जहाँ पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस किया जा रहा है हर जगह पे, वेयर दिस इज़ बीइंग डिस्कस दैट ऑयल्स बिगेस्ट क्रैश सिंस 1991, सऊदी एंड रसिया ब्रेकअप over oil and tracking the big oil price war. Oil war brings windfall for India. Windfall means sudden benefit for India. The next article is taken from Assam segment. It is regarding Shankar Dev and Holi festival in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6, Assam culture point of view. So the news article says कि जो हमारे असम में होली, या जिसको दोल जत्रा फेस्टिवल नाम से भी जाना जाता है, परहैप्स दिस फेस्टिवल वाज नॉट सेलिब्रेटेड इन एंशिएंट असम. इस फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया है असम के अंदर श्रीमंत शंकर देव जी ने. और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू पॉपुलराइज न्यू वेस्टर्नाइट कल्चर इन असम. तो श्रीमंत शंकर देव जी स्पेंट लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जगन्नाथ पुरी टेम्पल ऑफ उड़ीसा. और जगन्नाथ पुरी टेम्पल में भी इस तरह की एक यात्रा निकाली जाती है. तो परहैप्स ये जो आइडिया है दोल यात्रा का, जिसको होली नाम से भी जानते हैं, दिस वाज ब्रॉट इन असम बाय शंकर
Devji, and the idea he took from Jagannath Puri temple of Orissa itself. और उनके बाद after Shankar Dev, his disciple Madhav Dev promoted the idea of Holi festival across the Assam, and now this festival is quite popular across the Assam. Let us also see the thought of the day. It has been given by our former president Dr. APJ Abdul Kalam. People who are in high and responsible positions, if they go against righteousness, righteousness itself will get transformed into a destroyer. Please note, this is a notice in the Assam Tribune newspaper itself that since today, that is on Monday, the office of Assam Tribune will remain closed because of Holi festival. So there will be no release of the Assam Tribune newspaper tomorrow, that is on Tuesday. That is why we also won't be able to come up with a newspaper analysis tomorrow, since there will be no publication of Assam Tribune newspaper tomorrow. So directly we will come up with newspaper analysis on Wednesday, that is 11th of March. That's all from our side today. Thanks for watching.